the previous lecture, so in which we had seen some of the basic background of the Maris models and what are the factors which affects on the Maris model for the growth of the organization, in which we have what we had studied about कि according to Maris kept managers different and owners different. So Maris thought about the managers are separated from the organizations, and objectives and goals of the managers are different than organizations, the objectives and goals of the owners. So accordingly, what Mary suggested that if we want balanced growth of the organization, at that time we have to take into consideration both the objectives of owners as well as organization. So accordingly, if there is the growth of managers objectives, and if there is the fulfillment in managers objectives and owners objective, that time balanced growth of the organization is possible. ये मैरिज ने बताया था. So to achieve these objectives, we had discussed about some of the managerial or management constraints as well as financial constraint. In managerial constraint, we had seen that skill of manager, expertise of manager, efficiency, sincerity. So such kind of managerial skill can become a constraint for the for the achieving the objectives of the manager, that we had seen in the last lecture. Then we had seen some of the financial constraint due to which these some of the financial constraint due to which growth of organization is not possible, in which we had seen that is first is the debt ratio. Debt ratio is the amount of external funds or external capital with respect to your total asset, that we had seen in the last lecture. If this debt ratio is higher, it shows that insolvency of your organization. Getting this? And if debt ratio is low, that time it will have higher cost of capital to your organization. So you should have to manage this accordingly. ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. Then we had seen about the liquidity ratio. Liquidity ratio shows the ability of firm to convert your liquid assets into cash as early as possible. तो जितने भी मेरे टोटल असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है एंड करंट असेट्स है, उसमें से लिक्विड एसेट का प्रोपोर्शन कितना है. लिक्विड एसेट किसको बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ दैट एसेट टू कन्वर्ट इनटू कैश इमीडिएटली. जैसे कि बैंक बैलेंस मेरा लिक्विड एसेट है, मेरे जेब में जितने पैसे हैं वो मेरा लिक्विड एसेट्स है. बट suppose if I have certain amount of gold, that may be my liquid asset, because जब चाहे तो मैं जो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं liquid assets. Okay, for example, I have a raw material. So can I convert this raw material within fraction of second or within one hour or within 2 hours? Not possible. It require at least 1 week or 2 weeks. So this inventory or raw material is not my liquid assets. Okay, I have certain kind of debtors or my bills receivables. Again, receivables and sundry debtors are the kind of liquid assets. लेकिन अभी के अभी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या उसको लिक्विड एसेट में, कैश में नहीं. दैट्स व्हाई these are current assets, but these are not my liquid assets. Liquid assets are most of the times these are idle in nature. Means what? They are not going to generate the returns. So if you have kept huge amount of liquid assets, means what? Your huge amount of capital is blocked in such a place where returns are not generated. क्योंकि लिक्विड एसेट के ऊपर आपको जनरली इंटरेस्ट या कुछ रिटर्न्स नहीं मिलते हैं. तो ज्यादा अमाउंट अगर लिक्विड एसेट में हमने होल्ड की, तो उसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी अमाउंट लिक्विड एसेट में होल्ड है, उसके ऊपर मुझे कुछ रिटर्न्स नहीं मिलने वाला. तो इसका प्रोपोर्शन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. गेटिंग दिस? Then last one financial constraint was regarding to your retention ratio. Retention ratio means out of your total profit, how much profit
you are out of your total profit, how much profit you are you are distributing to the shareholders in the form of dividend, and how much proportion you are keeping, how much proportion you are keeping for investment purpose, how much proportion you are retaining. For example, I'll give you an example. अगर मेरे कंपनी का प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपीज, उसमें से अगर 50,000 मैंने डिविडेंड बांट लिया, सॉरी 500 रुपये, 1 लाख का अगर टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 50,000 अगर मैंने डिविडेंड बांट लिया और 50,000 रिटेंशन के लिए रिटेन किया यानी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी क्या करती है, मैनेजर क्या करता है, वही पैसा रखता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रिटेंशन रेशियो कितना हो गया, 50-50। अगर मैंने 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है, उसमें से 40,000 मैंने क्या किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, और 60,000 मैंने क्या किया, रिटेन किया, तो प्रोपोर्शन कितना हो गया, 40-60। सो अगेन इन द सेम मैनर, इफ अगर मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से 30,000 मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, और मैंने 70,000 क्या किया, रिटेंशन किया, यानी फ्यूचर बेनिफिट के लिए रखा। उसके बाद नेक्स्ट वे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए, उसमें से सिर्फ 10,000 मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, and 90,000 I have kept for the retention ratio. Now, here one thing you must understand. पहले स्टेप में मैंने क्या किया, 50,000 डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया, डिविडेंड दे दिया। उसके बाद 40,000 किया, उसके बाद 30,000 किया डिविडेंड, उसके बाद मैंने 10,000 किया। ठीक है, so in that case what happens, if you are distributing dividend to the shareholders, 50,000 जब देते थे, that time your shareholders may be satisfied with your organization। जैसे कि मैंने क्या किया, रेट ऑफ डिविडेंड और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड जैसे कि मैं कम करूंगा, वही पैसा मैं कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाला हूँ, रिटेंशन रेशियो में करता हूँ। ठीक है, रिटेन कर रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है, सो इफ वी इंक्रीज the proportion of retention ratio, so so if we increase the portion of this retained profit step by step, then what is going to happen, my shareholders will be dissatisfied। पहले मैंने 50,000 दिया था, तो उसको 50,000 डिस्ट्रीब्यूशन किया था डिविडेंड के फॉर्म में, उसके बाद 40 किया, तो क्या हो गया, शेयर होल्डर्स स्टार्टेड डिससेटिस्फाइड। ठीक है, जैसे जैसे मैं डिविडेंड का अमाउंट कम करूंगा, उसकी वजह से मेरा शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाइड होके मेरे कंपनी छोड़ के जाएगा। गेटिंग दिस? So you have to think about that your shareholders should be also satisfied, and you should have to get some retained profit for the expansion. So you have to make the proper combination of retention ratio and amount to be distributed to shareholders. So retention ratio is also one of the constant, financial constant for the growth of the firm. अगर ज्यादा पैसा, if I ignore the shareholders, and if as a manager, if I ignore the shareholders expectations, and if I transfer the amount of profit towards the expansion in the form of retention ratio, that time my shareholders will be dissatisfied and they will quit the organization, and I will face the problem of capital. So these are the some of the things which we had seen in the previous lecture. अभी actually model है क्या? So जो उसका जो background था, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अभी let us go to understand the model. Now this Mary's present this model formally in mathematical or graphical form में उसने present किया है। In Mary's model, goal of firm is maximization of balance growth, which is internally depends upon two factors. Mary's क्या बोलता है, firms का maximization balance होना चाहिए, balance growth, balance rate of growth वहां पे होना चाहिए, and balance rate of growth of firm is he has denoted by small g.
और ये G बैलेंस ग्रोथ ऑफ फर्म डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है। पहला है रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज द ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट, फर्म्स के प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर क्या सोचेगा कि मैनेजर्स के हम लोगों ने पहले ही देखा है कि मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट एंड ओनर्स ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। मैनेजर्स क्या सोचेगा कि भाई मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ना चाहिए, मेरे कंपनी का आउटपुट बढ़ना चाहिए, मेरे कंपनी का सेल्स बढ़ना चाहिए, तभी जाके मुझे सैलरी मिलेगी, तभी जाके मुझे जॉब सिक्योरिटी। तो बैलेंस ग्रोथ ऑफ फर्म होने के लिए पहला चीज ये होना चाहिए कि मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजर विल लुक टुवर्ड्स द फर्म्स product growth should be increased and that growth is denoted by cap GD। ओके, ये पहला पैरामीटर। और ओनर पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो ओनर क्या बोलेगा कि मेरे कंपनी को सप्लाई ऑफ कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, मेरे कंपनी को सप्लाई ऑफ कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल इज डिनोटेड बाय GC, G फॉर ग्रोथ and C stands for capital. In earlier, G is growth and D for the demand for your products. So if we want, if you expect a balanced growth at that time, G is equal to GD or is equal to GC। यानी बैलेंस ग्रोथ अगर हमको चाहिए तो सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट एंड डिमांड supply demand for the growth of capital, it should be equal। clear about this? तो balance growth is equal to G, G is equal to GD is equal to GC। ये सारे इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होते हैं या if they are, if these two parameters are satisfying, automatically my G will be get satisfied। okay, तो उसमें the firm seeks to pursue this balanced growth objective subject to two major constraints, that is the managerial and financial। तो मैंने, हम लोगों ने मैनेजरल कंस्ट्रेंट प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी प्रीवियस स्लाइड में देखे। तो ये बैलेंस ग्रोथ अचीव करने के लिए मुझे मैनेजरल कंस्ट्रेंट एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रिसॉल्व करने पड़ेंगे। गेटिंग दिस? नाउ that's why we say like G is equal to GD equal to GC। GD is the supply of, that is the growth of demand for the product, and GC is the growth or the growth of the capital supply। Then the managerial supply constraint is set by the skill and efficiency of available managers। ठीक है, मैनेजर कंस्ट्रेंट क्या है? स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स, एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल मैनेजर्स का स्किल क्या है और अवेलेबल मैनेजर्स के एफिशिएंसी क्या है, अकॉर्डिंगली वी विल रिजॉल्व इट। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या है? जैसे कि हम लोगों ने रिटेंशन रेशियो देखा, उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो देखा और डेट इक्विटी रेशियो। ओके, तो ये दोनों रिजॉल्व करके हमारा बैलेंस ग्रोथ होने वाला। ओके, नाउ due to this managerial constraint and organization financial constraint, we got the two utility function। तो पहला utility function is for owners। owner का utility function is denoted by OU, U for utility, O for owners। so UO is equal to F1 of GC। अभी GC क्या है? G stands for growth and C stands for capital। owner क्या देखेगा? capital देखेगा। that's why we can write this to utility function, that is UO is equal to F1 of GC। F1 is the function, it is the first function। so UO is equal to F1 of GC। F stands for function। ठीक है, now second we can think about manager's point of view and we will calculate the utility of managers। so first U0 or UO is equal to F1 of GC। this is the function of owner। now उसके बाद UM is the utility function of manager। it is the function of GD and S। GD यानी that is the growth of demand to your product, and S is the job security at the outset। so managerial function becomes UM is equal to F2 of GD comma S, where GD is the demand for your products, D is the demand
and S is the job security at the outset. So on the basis of balanced growth, we have prepared two utility function. One utility function is for owner and second utility function is for manager. Okay. Now यहाँ पे जो मैंने ES यूज किया है, ES stands for job security constant. Okay. Now this ES is an exogenously determined constant by assuming there is a saturation level in the job security. ES is the outside constant कि मुझे डर है कि बाहर जॉब मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे वर्क करनी है. That is called as a exogenously determined constant. Getting this? So there is the job saturation outside, that's why I may not get the job, that's why I will work there. समझ में आ रहा है? So accordingly at critical level, so we will take the differentiation of managerial function. So we will take the differentiation of managerial utility function. So it is denoted by differentiation of or d of um upon ds with respect to supply, with respect to saturation level, sorry, with respect to supply or with respect to saturation level of job, we will write that dm upon ds is equal to 0. Okay. And below that level, we will have differentiation of um with respect to ds is equal to alpha. So alpha stands for financial security constant. Just try to understand this. Okay. So पहले हम लोगों ने utility function decide की है. Utility function dm and um and uo consider किया. O is for owners, m is for manager. उसके बाद क्या बोला कि जो था मेरा मैनेजरल यूटिलिटी फंक्शन में कौन अफेक्ट कर रहा था? एस वाज द जॉब सिक्योरिटी लेवल. तो एक बात जॉब सिक्योरिटी के लेवल अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन किया. क्रिटिकल लेवल पे जॉब सिक्योरिटी लेवल का सिक्योरिटी लेवल का यूटिलिटी फंक्शन का जॉब सिक्योरिटी लेवल से कंपेयर करने के बाद वो 0 आ गया. उसके बाद बिलो दैट लेवल, उसके नीचे कितना लेते हैं हम लोग? अल्फा. जस्ट ट्राई टू कीप इन माइंड दिस थिंग्स. ओके. नाउ उसके बाद क्या होता है देखिए, इफ दिस फंक्शन इज मेड टू द मैनेजरल यूटिलिटी फंक्शन, इट मे बी एक्सप्रेस, जो यहाँ पे जो मैंने अल्फा वाला जो लिखा है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन लिखा है. उसके बाद इफ दिस अजम्पशन इज मेड टू द मैनेजरल यूटिलिटी फंक्शन, मैनेजरल यूटिलिटी फंक्शन के लिए ये अजम्पशन कैसा होता है? It is expressed as qm or is equal to f2 of gd into s. f2 of gd into s. कुछ नहीं किया मैंने, ये जो यहाँ का जो था ना, किधर गया ये um वाला um is equal to f2 of gd into s as it is वही लिया है, f2 of gd into s. Here just we have imagined two conditions. ये पहले जो दो कंडीशन है डिफरेंशिएशन का वो इमेजिन किया है कि क्रिटिकल लेवल पे डिफरेंशिएशन 0 होता है जॉब सिक्योरिटी लेवल से, और उसके नीचे कितना होता है? अल्फा लेवल होता है. दैट इज ओनली पॉइंट टू अंडरस्टैंड. उसके बाद क्या करना है? दिस वाज माय अर्लियर इक्वेशन. कहाँ पे इक्वेशन था? ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे एज इट इज लिया. ओके. दिस ग्रोथ इज सब्जेक्ट टू टू कंस्ट्रेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव. हम लोगों ने ये जो ग्रोथ है, डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट एंड मैनेजर्स यूटिलिटी फंक्शन, to satisfy this managerial utility function, we have seen two parameters, management parameters or management constant and financial constant. अभी देखिए, now in the job of, हाँ यहाँ पे क्या आ गया है? um equal to fd of gd into s बार आया है. यहाँ पे s था, यहाँ पे देखिए जॉब सिक्योरिटी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? s बार कंसिडर किया है. s बार मीन्स व्हाट? देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप. वो ये रिलेशनशिप दिखाने के लिए मैंने क्या किया? एस बार यूटिलाइजेशन. अभी देखिए, इन केस ऑफ जॉब सिक्योरिटी द मैनेजर्स बिकम रिस्क टेकर्स. जॉब सिक्योरिटी के बारे में क्या है कि मैनेजर्स आउटसाइड में जॉब नहीं है इसलिए यहाँ पे काम करेंगे, कुछ भी किया तो ऐसा नहीं हो सकता है. गेटिंग दिस? Manager will find, if manager is not satisfied with the organization, manager will go outside and he will negotiate the salary. तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बाहर जॉब नहीं है इसलिए मैनेजर इधर ही काम करेगा, ऐसा नहीं होता है. मैनेजर कैन फाइंड आउटसाइड एज वेल.
So managers become risk taker by choosing the prudent financial policy which consists of determining optimum level of following critical financial ratio. तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर कैन डू टू थिंग्स. एक तो क्या करेगा? he will take the risk, he will find the job outside, as well as along with this what he will do, he will take the he will manage the financial constraints like liquidity ratio, debt ratio, and retention. He will take the risk and he will determine the optimum level of this ratio. Okay, and these three ratio provides the financial security, financial constraint. Okay, I mean in this case we have utilized three variables. तो पहला वेरिएबल था हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, दैट वाज डिनोटेड बाय अल्फा. Then we have utilized the rate of diversification, and last one is the average profit margin. तो यहाँ पे after deciding on its financial policy, firm has to decide the rate of diversification. Diversification यानी क्या है कि I will what manager will think, to increase the production level, to increase my sales, I will diversify the product. Diversification यानी क्या है कि making your products in different varieties. ठीक है, यानी मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 ऐसे various differentiations or various modifications into my product I will make. That is something about diversification. तो यहाँ पे मैनेजर कितने बार प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करता है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट और मेरा सेल चेंज हो जाएगा. somebody's mic is on. माइक किसका ऑन है? प्लीज ऑफ कीजिए. इट इज गेटिंग डिस्टर्बेंस. ओके, तो हम लोग यहाँ पे पॉलिसी, व्हिच आर द पॉलिसी वेरिएबल, कोई भी पॉलिसी डिसाइड करते समय मैनेजर ने कौन से चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंस्टेंट. फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंस्टेंट मींस व्हाट? लिक्विडिटी रेशियो, डेट रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो. उसके बाद सेकेंड पॉलिसी वेरिएबल है, वेरिएबल यानी जिसकी वजह से मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है, दैट इज द रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मींस व्हाट? मेरा जो मॉडल है उसमें कितने में मॉडिफिकेशंस करके नया मॉडल लॉन्च करूं. गेटिंग दिस मींस अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्सिफिकेशन. तो कितने बार हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को, ये भी मैटर करता है. एंड एवरेज प्रॉफिट मार्जिन, आपको मार्जिन कितना रखना है डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. सो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स ड्यू टू व्हिच माय डिसीजन कैन चेंज, एंड ड्यू टू चेंजेस इन द डिसीजन मेरा बैलेंस ग्रोथ अचीव करने में प्रॉब्लम आ जाए. अभी रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा है, देखिए. फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंस्टेंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. then average profit rate of diversification which we have to study here. Abhi rate of diversification means what? It depends upon the change in the style of existing range of products by expanding its range of products. यहाँ में इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे अवेलेबिलिटी मॉडल्स है, अवेलेबल मॉडल्स है प्रोडक्ट्स के, वो छोड़ के मैं कुछ मॉडल्स बनाऊंगा. वैरायटी आई एम गिविंग टू माय customers. Varieties of products I will produce and I will give to my customers. That is something about diversification. तो diversification manager कितनी बार करता है, कितनी बार diversification करता है, that also one of the parameters. अभी diversification करते समय there are two types of diversification. One is the differentiated and second is the intimative diversification. अभी modifications करते समय I will compare my product with my competitors product. मेरा प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के साथ में कंपेयर करूंगा. फॉर एग्जांपल आई एम प्रोड्यूसिंग लैपटॉप, तो लैपटॉप में मेरे पास 25,000 को मिलने वाला लैपटॉप है, 30,000 को मिलने वाला लैपटॉप है, 35,000 को मिलने वाला लैपटॉप है, 40,000 को मिलने वाला लैपटॉप है, 1 लाख को भी मिलने वाला लैपटॉप है मेरे पास. That is something about diversification of your product. You are selling the laptop, but in that laptop there are various range, that is called as a diversification. ठीक है. अभी डाइवर्सिफिकेशन करते समय मैनेजर को दो चीजों का डाइवर्सिफिकेशन करना है. एक
को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज द इमिटेटिव डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं लैपटॉप लॉन्च करके पहले क्या करूंगा, मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का सर्वे करूंगा और मेरे कस्टमर का भी प्रोडक्ट का सर्वे करूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम मेरा 25,000 को बेचने वाला रेगुलर मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैंने 1 लाख का प्रोडक्ट जनरेट किया, 1 लाख प्राइस का अगर लैपटॉप बनाया, तो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बिकॉज दिस प्रोडक्ट your customer cannot compare with his own product, as well as you can also not compare your product with existing product. That is called a unique product. It cannot match with the market. Getting this? So इसको बोलते हैं differentiated diversification. So see, in differentiated diversification, firms introduces new product having no substitute. लोगों को लेना ही लेना पड़ेगा और उसके कंपैरिजन में दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसी टाइप का यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, एट दैट टाइम डेफिनेटली माय प्रॉफिट विल गो अप एंड माय सेल विल गो अप। ये मुझे देखना है। तो दिस इंक्रीजेस द न्यू डिमांड एंड कम्पीट्स विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तुम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मेरे और मेरे कस्टमर के, उनके साथ क्या हो जाएगा, कंपटीशन होके मेरा प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाएगी। सो दैट इज समथिंग अबाउट डिफरेंशिएटेड डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा चीज है इमिटेटिव डाइवर्सिफिकेशन। तो इमिटेटिव डाइवर्सिफिकेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इज अ सब्स्टिट्यूट टू द प्रोडक्ट्स व्हिच इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्पिटिटर। जो ऑलरेडी मार्केट में है उसी टाइप का मेरा डाइवर्सिफिकेशन आ गया। मींस व्हाट, पहले मैं 25,000 तक के मॉडल्स सेल करता था, अभी मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है। मींस व्हाट, आई हैव टू लॉन्च न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। My new variety of product which I am launching, it may be a equal with respect to specification with my competitors as well. मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट और मेरे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट इस सिमिलर रेंज का भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ इमिटेटिव डाइवर्सिफिकेशन। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, in this first form, reaction of competitors are not expected as there is no encroachment of the market share. तो पहले चीज में क्या हो जाएगा, पहले थिंग्स में डिफरेंशिएटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो जाएगा, I will capture the market and I will capture the market and nobody will be there to grab my market। क्योंकि मेरे प्रोडक्ट जो 1 लाख का प्रोडक्ट किसी भी कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं। 1 लाख के जो प्रोडक्ट मैंने बनाया, उसका फीचर्स, उसके क्वालिटी, उसका लाइफ टाइम, उसका जो कुछ रहेगा, वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास उसका उसी टाइप का प्रोडक्ट नहीं रहेगा। मींस एट दैट टाइम यू विल बी द लीडर ऑफ मार्केट सो दैट your sale will increase। Okay, second, hence the firm prefers growth in demand through the differential diversification। अगर हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे डिफरेंशियल डाइवर्सिफिकेशन में रहेंगे तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। ओके, now if you are doing higher rate of diversification, बार बार अगर हम लोग ऐसा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो मेरा कंपनी का ग्रोथ या प्रोडक्ट का ग्रोथ अच्छा रहेगा। so this is one of the variable which affect on the growth of the organization। अभी लास्ट वेरिएबल इज द एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। आप प्रॉफिट मार्जिन कितना रखते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन यानी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट इज इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रिसर्च एंड प्रॉफिट में से कितने खर्चा हम लोग खर्चे कर रहे हैं, इसलिए एडवर्टीजमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Getting this? So if you do not do the advertisement, if you do not do the diversification into product, at that time you will not get good sale। अगर मुझे प्रोडक्ट में सेल चाहिए तभी जाके मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन यानी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग। वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए ना उसके प्रोडक्ट के ऊपर। मुझे कुछ रिसर्च बनाना पड़ेगा तभी जाके मेरा प्रोडक्ट नया मैं लॉन्च कर सकूं। तो हाउ मच अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तभी जाके मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा।
and how much amount you are investing into advertisement of your product, तभी जाके मेरा सेल बढ़ेगा. So without advertisement and without R&D expenditure, you cannot increase your sale, you cannot increase your profit. That's why. तो ये जो पैसा यहाँ पे हम लगाएंगे, मैनेजर लगाएंगे R&D के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, ये पैसा कहाँ से आएगा? पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट यू आर यूटिलाइजिंग. प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रॉफिट मार्जिन. ओके, so how you are going to calculate average profit margin? So it is denoted by small m. Small m is equal to P minus C minus A minus R&D. P यानी profit, C यानी cost, A is your advertisement, R&D is your research and development expenses. Profit में से पहले मैं cost minus करूंगा. Profit minus cost, whatever is the value, उसमें से मैं advertisement minus करूंगा और उससे मैं क्या करूंगा? R&D expenditure minus करूंगा. So whatever is the value, by subtracting your cost, your advertisement expenses and your advertisement expenditure and research and development expenses, जो कुछ हिस्सा बन जाएगा, that will be your average profit margin. Okay. The proportion of successful new products depends upon the D. तो D क्या है? That is the demand for your product. Okay. The rate at which the new products are introduced. However, if products are introduced too fast, अभी देखिए डाइवर्सिफिकेशन करते समय हम अगर बार में कोई भी कंपनी ले लो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी. ठीक है, मारुति सुजुकी देखिए या टाटा देखिए, हर 6 to 8 मंथ में वो नया गाड़ी लॉन्च करते हैं, नया मॉडल लॉन्च करते हैं. फॉर एग्जांपल स्विफ्ट LXi, PXi या ऐसा कुछ नया मॉडल आता है. ठीक है, मींस व्हाट, these are the diversification or the differentiation into the product. Some features may be different as compared to previous model. तो ये अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो कितने बार करते हैं? ठीक है, सो कितने बार करते हैं? इट मे हैपन दैट अगर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है. जो नया वाला प्रोडक्ट, कोई भी एस क्रॉस एक नया गाड़ी आ गया मारुति का एस क्रॉस. ठीक है, so that model is not getting that much of demand. यानी मेरा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन फेल भी हो सकता है. मैं लॉन्च करूंगा बट कस्टमर विल हैप्पी विद प्रीवियस प्रोडक्ट. ये भी हो सकता है ना. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? मैं नया मॉडल लॉन्च करूंगा बट कस्टमर विल नॉट एक्सेप्ट इट. मारुति सुजुकी का एक नया एस क्रॉस मॉडल आया, फीचर्स आर गुड. उन्होंने ब्रेजा का थोड़ा शेप दिया था उस गाड़ी को. ब्रेजा गाड़ी है ना, ब्रेजा गाड़ी का थोड़ा सा मॉडल या डिजाइन वहां पे एस क्रॉस में यूज किया था, एंड इट वाज कॉम्पिटिटर टू इट्स Celerio प्रोडक्ट. Getting this? But the product is not getting that much of sale because the product was failed. Diversification में मेरा प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है. Getting this? So अगर मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया तो उसके ऊपर वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर जो कुछ मैंने खर्चा किया रहेगा, एडवर्टीजमेंट किया रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया रहेगा, वो पानी में जाएगा ना. समझ में आ रही है बात? So some of your profit margin may fail in your investment. It can also happen. So the D stands for the diversification rate. कितने बार करते हैं हम लोग, साल में, 2 साल में, 4 साल में. That is something about diversification rate. Thus, the diversification rate T and growth rate of demand ZD are positively correlated. अगर डाइवर्सिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया तो मेरे कंपनी का डिमांड, कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा. और डाइवर्सिफिकेशन रेट अगर फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? मेरे कंपनी को उतना प्रोडक्ट्स नहीं मिलते. But how many times you are making diversification into product, accordingly my product demand can increase. So there is the positive relationship between these two things. But GD increases at decreasing rate as D increases. अगर डाइवर्सिफिकेशन में ज्यादा ही डाइवर्सिफिकेशन किया तभी होके क्या हो जाएगा? मेरा ये ग्रोथ भी कम हो सकती है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल किया, स्विफ्ट के बाद स्विफ्ट के बहुत से मॉडल हो गए, सारे मॉडल चल गए. ठीक है, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट VDI वगैरह वगैरह सारे मॉडल चल गए.
लेकिन ऐसा भी हो सकता है ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने से कुछ प्रोडक्ट फेल भी हो सकते हैं, जैसे कि एस क्रॉस वाला एग्जांपल दिया मैंने। Celerio was working. Celerio is getting good demand. लेकिन Celerio को डिमांड, वो एग्जिस्टिंग डिमांड छोड़ के नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे और नया प्रोडक्ट फेल हो सकता है। गेटिंग दिस? सो अगर ज्यादा, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तभी जाके भी मेरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन फेल भी हो सकता है। That's why you have to decide the how many times you have to do this diversification. That is something about diversification rate. Okay. Now at the same time, GD and average profit margin are inversely related to advertisement expenditure and research and development. So growth of demand and average profit margin are having a inverse relationship. पहले मैंने क्या बोला, diversification rate and growth rate of your product, it is having positive relations. लेकिन growth of your product and your average profit margin has inverse relationship. Inverse profit margin अगर ज्यादा हम लोगों ने रखा तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स विल बी डिससेटिस्फाइड। अगर प्रॉफिट में से ज्यादा हिस्सा मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया तो क्या हो जाएगा, माय शेयर होल्डर्स विल बी डिससेटिस्फाइड बिकॉज आई एम यूटिलाइजिंग देयर डिविडेंड फॉर माय एक्सपेंशन एक्टिविटीज, सो दे विल क्विट द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप। इसलिए GD is equal to F of D and M. D stands for diversification, M stands for average profit. अगर एवरेज प्रॉफिट मार्जिन हम लोग बढ़ाते हैं और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाते हैं तभी जाके मेरे कंपनी का प्रोडक्ट का ग्रोथ होने वाला है, ये इसका मीनिंग होगा। ओके, अभी देखिए रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड प्रॉफिट। जस्ट रीड दिस स्लाइड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस स्लाइड। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल। जस्ट रीड दिस स्लाइड। Excuse me, sir. फिनिश्ड? यस सर, डन। ओके, तो इसमें क्या बोला है देखिए कि अगर ज्यादा भी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया तो मेरा प्रोडक्ट फेल हो सकता है। आई हैव टू थिंक कि कितने बार डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन यानी है क्या कि मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना उसका कुछ फीचर्स चेंज करके नया प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। उससे क्या हो सकता है, मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का भी डिमांड कम हो सकता है। कभी कभी नया डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। गेटिंग दिस? तो हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन कितने बार करना है, एक साल में कितने बार करना है, 2 साल में कितने बार करना है, आई हैव टू डिसाइड। गेटिंग दिस? और कब करना है ये भी आपको डिसाइड करना है। गेटिंग दिस? इफ सो मेनी कंपनीज आर मेकिंग लॉन्चिंग देयर न्यू प्रोडक्ट एट द सेम टाइम, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, मेरे कंपनी को मेरे प्रोडक्ट को डिमांड नहीं पड़। फॉर एग्जाम्पल मैं भी जनवरी मंथ में लॉन्च कर रहा हूँ, टाटा भी जनवरी में भी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मारुति भी जो जनवरी में भी कर रहा है, महिंद्रा भी जनवरी में ही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर्स व्यू और टोटल नंबर ऑफ योर कस्टमर विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नहीं करना है। सो यू हैव टू फाइंड द यूनिक टाइम टू मेक लॉन्च ऑफ योर प्रोडक्ट। तो उसमें ये क्या बोला है, व्हाट दिस स्लाइड सेज दैट
this relation is positive till the extent. प्रॉफिट और ग्रोथ में पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं, लेकिन कुछ टाइम लिमिट, अगर कुछ टाइम लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस किया तो मेरा प्रॉफिट बिकम्स नेगेटिव। जैसे कि एस क्रॉस का मैंने एग्जांपल, प्रोडक्ट अगर गलत टाइम पे अगर लॉन्च किया, गलत टाइम पे अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो क्या हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो देयर आफ्टर थ्रेशोल्ड लिमिट में प्रॉफिट में बिकम्स नेगेटिव। तो इसलिए मैंने वो ध्यान में देना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स में क्या फीचर्स है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में नहीं है, ठीक है। माय कस्टमर विल बी हैप्पी विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एज वेल, सो दे विल नोबडी देयर टू परचेस न्यू डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, ऐसा भी होता है। उसके बाद प्रॉफिट निगेटिव या हमारे ग्रोथ निगेटिव क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन जो था ना, उसके हिसाब से भी मेरा ग्रोथ निगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1000 रुपीज प्रॉफिट के थे, प्रॉफिट के 1000 रुपीज थे, उसमें से 500 रुपए मैंने ग्रोथ में लाए और 500 रुपए डिविडेंड दिया। उसके पास सेम अमाउंट मेरे पास थी 1000 रुपीज का। आई हैव 3 डिसीजंस और आइदर टू डू 50-50, 60-40 और 80-20। अगर मान लो लास्ट वाला मैंने ऑप्शन चुना तो क्या हो सकता है? आई हैव अमाउंट टू इन्वेस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड रिसर्च डेवलप, लेकिन हियर आई एम इग्नोरिंग माय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को मैं कितना अमाउंट दे रहा है? 200 रुपया। पहले कितना दिया था? 500 रुपए दिया था डिविडेंड के फॉर्म में, फिर 400 किया, फिर 200 किया, फिर मैं 100 करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? मेरे शेयर होल्डर्स कंपनी छोड़ के जाएंगे ना, सो आई विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। Getting this? So you have to use this profit distribution method. Proper combination you have to make there. Okay, as with respect to by considering the expectations of existing shareholders. Shareholders को dividend कितना चाहिए? उनके expectations क्या है? With prior permission of shareholders, you can utilize the part of profit in the retention ratio. If you ignore the shareholders, automatically shareholders will quit the organization and you will face the problem of capital. Okay. अभी देखिए conditions क्या है? When new product is launched, firm expands and its profit increases. जब new product हमेशा हम लोग launch करते हैं first time, तो firms expand profit, firm के operations expand होते हैं और profit increase होता है ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन हम लोग बार बार अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट में तो प्रॉफिट बिकम्स नेगेटिव। प्रॉफिट क्या होता है? नीचे आता है, कम होता है, क्योंकि देयर आर हाईली चांसेस दैट द प्रोडक्ट मे बी फेल। एक तो मेरा पूरा प्रोडक्शन, नया प्रोडक्ट तो टोटली कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे, पुराना मॉडल मुझे आउटडेटेड में डालना चाहिए पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा नैनो। गेटिंग दिस? नया पुराना प्रोडक्ट पूरा लॉस में ही जाएगा और नया प्रोडक्ट में कुछ कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे। गेटिंग दिस? सो अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज मे बी लॉस, ऐसा भी हो सकता है। फर्म्स एबिलिटी टू कोप अप विद द डिफरेंट चेंजेस बिकम्स डिफिकल्ट। हर टाइम में अलग अलग वैरायटी ऑफ सिचुएशन को कोप अप करना यानी मैच करना, ये पॉसिबल नहीं होता है हर टाइम। That's why I will lead my organization towards the loss as well. अभी look at this diagram, जो कुछ अब हम लोगों ने अभी तक देखा है ना, ये सारा इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। Just read this diagram, just try to understand this diagram, then I will explain you this diagram क्या actually होता है। Have you seen this slide? This is the end of the theory now.
Hello, students. Yes, sir. Okay. Now, whatever theory we have seen about Mary's, this entire theory is there into this slide. अभी देखिए मैंने क्या किया है. I have taken two things, two parameters over here. On x-axis, I have taken growth of the firm, and on y-axis, I have considered the profit of the organization. Okay. मेरा कहना क्या है कि हर टाइम हम लोग जब कैपिटल का सप्लाई या कैपिटल प्रोडक्शन हम लोग एक्सपांड करेंगे तभी हर टाइम मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है क्या, वो मुझे देखना है. ओके. नाउ इन केस ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव शोन GSO, that is GS0, GS1 and GS2. So GS1, GS2 and GS3, these are the three trends of capital supply. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना, कौन सा एग्जांपल, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से. पहले मैंने क्या किया था, 50% ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया था और 50% डिविडेंड दिया था. उसके बाद 600 रुपये यहाँ पे यूटिलाइज किया ग्रोथ के लिए और 400 रुपये डिविडेंड दिया. तीसरा 800 रुपये ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किए एंड 200 रुपये डिविडेंड दिया. वही मैंने यहाँ पे दिखाया है, GS1, GS2, GS3. These are the three ways to make growth in the capital supply. ठीक है. तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रेट चेंज किया. So whatever capital of proportion which we have taken in earlier slide, that I have shown here, that is GS0, GS2 and GS3. Accordingly, I have adjusted my capital. Okay. उसके बाद, so just look towards, तो पहला जो चीज था, पहला जो ये था GS0, उसमें मैंने क्या किया, 800 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 800 रुपया मैंने कैपिटल के फॉर्म में यूटिलाइज किया और 200 रुपया डिविडेंड दिया. दूसरे थिंग्स में मैंने क्या किया, 600 रुपये यूज किया कैपिटल के फॉर्म में और 400 रुपये डिविडेंड दिया. तीसरे चीज में 50% यूटिलाइजेशन किया और 50% डिविडेंड दिया. सो दीज आर दी थ्री कर्व्स. ओके, एज पर द चेंज इन द ग्रोथ ऑफ द सप्लाई, आई कैन ग्रो माई कैपिटल सप्लाई बाय दिस वे. मैं थोड़ा करके मैं एक तो इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा. अकॉर्डिंगली आई कैन गेट दिस थ्री कर्व्स. Okay, after that, if you are doing these things, accordingly what is going to happen? तो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, look at this diagram. जैसे जैसे मैं ग्रोथ बढ़ाऊंगा उसके हिसाब से मेरा डिविडेंड का रेट चेंज होने वाला है. देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरा कैपिटल बढ़ गया 500, 600, 800, कैपिटल में ग्रोथ होगी. लेकिन डिविडेंड में देखो, डिविडेंड में इनवर्स ग्रोथ होगी, दैट इज द डिक्लाइन हो गया इनवर्स. ये मेरा प्रॉफिट, मेरा डिविडेंड का रेट क्या हो गया, कम कर दिया. डिविडेंड का रेट कम हो गया, इसका मतलब अल्टीमेटली देयर विल बी द डिक्रीज इनटू योर प्रॉफिट. हर टाइम हम लोग जो कुछ डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, टू सर्टेन एक्सटेंट माय प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज, क्योंकि shareholders will quit your organization and you will face the problem of your capital. अभी देखिए मेरा कैपिटल कर्व जो है, just look towards the profit and now this is the curve जो यहाँ पे कैपिटल कर्व, there are three capital curve, GS0, GS1 and GS2. now यहाँ पे मैंने ये जो कर्व दिखाया है ना, ये है हमारा ग्रोथ ऑफ डिमांड टू योर प्रोडक्ट, ग्रोथ ऑफ डिमांड टू योर प्रोडक्ट. तो ये ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है, डिमांड टू योर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वी विल काउंट इन टर्म्स ऑफ डिमांड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 रुपीज था, उसके बाद मेरा प्रॉफिट ऐसा बढ़ते गए. ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते जाने के बाद यहाँ पे दैट डिमांड, ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ डिमांड, इट क्रॉस विथ योर GSO, दैट इज द ग्रोथ ऑफ सप्लाई, वेयर यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ profit and here is the certain amount of demand, growth of your organization. So output for example यहाँ पे आपका 100 units का था, तो 100 units में जाके मेरा प्रॉफिट एट सर्टेन लेवल, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है, y एक्स पे मेरा प्रॉफिट दिखेगा, x एक्सिस पे मेरे ग्रोथ दिखेगी, आउटपुट दिखेगा. ओके, तो पहले इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट था, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज विल बी माय प्रॉफिट एंड आई हैव टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑन y x एक्सिस. उसके बाद क्या हो गया,
So the point which I am getting at L, this is not your optimum point. उसके बाद भी हम लोग कैपिटल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने कैपिटल में चेंजेस किया। जो पहला जो था कैपिटल, यहाँ पे देखिए ये वाला कैपिटल 500 रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था कैपिटल ग्रोथ में, तब मुझे कुछ प्रॉफिट मिल गया था, दैट वाज माय ऑप्टिमम प्रोडक्ट। उसके बाद 500 के बाद मैं फिर चेंज 460 600 400 का प्रोपोर्शन कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। उसमें क्या किया, एम में मैंने 600 400 का प्रोपोर्शन किया, तभी जाके मेरा प्रॉफिट और भी बढ़ गया कुछ एज कंपेयर टू एल। एम इज द पॉइंट वेयर योर प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड। यहाँ पे 500 था तो यहाँ पे 520 रहेगा। गेटिंग दिस, माय प्रॉफिट हैज बीन increase to certain thing at that time to generate this 520 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए मुझे how many units I have to produce, for example in this it may be related to 120 units, यहाँ पे 120 रहेगा, यहाँ पे 100 units रहेगा। Okay, but after crossing this M, if I am coming towards E, what is going to happen? जब मैं मेरा डिसीजन चेंज करूंगा, कौन सा डिसीजन चेंज करूंगा? 80 200 डिविडेंड करूंगा। 80 रुपीज ग्रोथ में 200 रुपीज डिविडेंड में जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? मेरे शेयर होल्डर्स मेरा कंपनी छोड़ के जाएंगे। गेटिंग दिस, सो आई विल डेफिनेटली फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड माय ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड विल डिक्रीज। ठीक है। एज वेल एज सेकेंड चीज क्या हो सकती है, अगर और भी मैं डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स में करूंगा तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन नीचे आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट नीचे आ सकता है। सो E is the point at which your profit has been declined due to some of the constraint. It may be constraint, one constraint may be diversification of your product, or second constraint may be a proportion of dividend. Getting this? एक कंस्टेंट क्या हो सकता है, आपका डाइवर्सिफिकेशन रॉन्ग पड़ गया, मॉडल लॉन्च जो है वो फेल हो गया, या दूसरा क्या हो सकता है, आपका डिविडेंड आपने कम कर दिया, डिविडेंड आपने कम कर दिया। इससे क्या हो सकता है, मेरे प्रोडक्ट की ग्रोथ, मेरे प्रोडक्ट का ग्रोथ या प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है। सो E is the point where your profit share has been decreased. E is the point where your profit share has been decreased though you are producing higher units. पहले मैंने L के परपेंडिकुलर x एक्सिस पे जब मैंने डाला, यहाँ पे मैंने 100 यूनिट्स थे, M ऑन x एक्सिस फॉर एग्जांपल 120 थे, और E के पॉइंट पे 150 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रॉफिट 150 यूनिट के हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। So there is no way to manufacture 150 units, because at these 150 units my sale may increase but profit is not going to be increased. So I cannot prepare, I cannot produce at E, I cannot produce at L, but I can produce at M. I can produce at M, where you have certain number of higher number of profit, and if you cross M, if you cross the threshold limit, your profit will decrease. So what is my optimum production? My optimum production is at M. Getting this? So this is how Maris has explained this theory. अभी देखिए, when GS cuts the GD line, देखिए इस लाइन में when GS, ये जो GS लाइन है, तो GD और GS का यहाँ पे क्या होता है, कट होते, फर्स्ट टाइम कट होते हैं। ओके, सी एट L इट इज नॉट एन ऑप्टिमम पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये मेरा प्रोडक्शन का प्रॉफिट का ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो मेरा ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा बन गया, M बन गया। ओके, here growth rate is low and profit will be also, profit is below maximum level. यहाँ पे ग्रोथ रेट कंपनी का कम है और प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल से भी कम है, दैट्स व्हाई द L पॉइंट इज नॉट योर ऑप्टिमम लेवल। उसके बाद Maris says रिटेंशन रेशियो डिसाइड द ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। ये तो ध्यान में आ गया, रिटेंशन रेशियो क्या करता है, ये जो रिटेंशन रेशियो या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिखाया है, वो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई डिसाइड करता है, कितना रिटेन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, नेक्स्ट, इफ रिटेंशन रेशियो इज लो देन फर्म्स ग्रोथ रेट इज आल्सो लो।
अगर कम प्रॉफिट में से कुछ कम हिस्सा हम लोग रिटेन करते हैं, इसका मतलब वी डोंट हैव अमाउंट फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर ये प्रॉफिट मार्जिन रेशो कम रहेगा, रिटेंशन रेशो कम रहेगा, दैट टाइम वी हैव लेस अमाउंट फॉर एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड डाइवर्सिटी। इसलिए फर्म का ग्रोथ भी कम होगा, बिकॉज रिटेन टू रिटेन वी हैव टू हैव अ लेस प्रॉफिट। ठीक है। Then if manager increases more retained profit in capital, shareholders will leave the company, so growth rate decreases. अगर मैनेजर ज्यादा कैपिटल रिटेन करते हैं तो क्या हो जाएगा, shareholders due to expectations of the dividend, shareholders will leave the organization and growth of organization can decrease. So this was the conclusion of this marriage model. Do you have any doubt regarding to this? Can you able to write in examination? So we have finished this lecture today. Do you have any doubt regarding to this? If you have any doubt, you can ask me. Excuse me, sir. Yes. I want to ask that whether we will have numericals on this chapter unit as you was explaining that. No, numericals are not there. Okay, sir. This is theoretical model. No, you was explaining that how to find profit F1, M, all those things. I thought that might be. No. You have to just explain, describe this graph. क्या होता है actually? और यहाँ पे मैंने for your sake of your understanding, I have calculated the profit distribution methods. Okay. Initially also you was explaining some F1, F2. That was also so I asked. No. This was the part of theory of the Maris. जो मेरिस ने एक्सप्लेन किया ना, ये जो थ्योरी, तो थ्योरी का ये एक्सप्लेनेशन था, ये वाला आप बोल रहे हैं ना? Yes, sir. Exactly this one. Okay. So this was the theoretical background of this Maris theory. So numericals are not going to ask. Okay. Okay, sir. They will give you some of the situation कि ऐसा किया यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा. So you have to explain the situation like case based analysis होगा. Okay, sir. कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया तो क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट किसके ऊपर हो सकता है, डिफरेंशिएशन रेट बढ़ाए तो क्या हो सकता है. गेटिंग दिस. सो व्हाट इज द ग्रोथ, what is the rate of growth in product differentiation, that is the product demand as well as capital supply and balance. तो इन दो इसमें से जो रिलेशंस होते हैं, पॉजिटिव रिलेशंस, नेगेटिव रिलेशंस, इनवर्स रिलेशंस, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं. But numericals are not going to be expected on this chapter. Okay, so thank you so much. Okay. So let us stop here. Now we have left with only two theories from the first unit. Then we will finish this unit. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have one question. Can you please show me the graph? 1 minute. This graph, na? Yeah. If I draw a point here, I can't even draw. At which point? At L, M, or E? At the downward of E. Like, Okay. can you see the point I have driven here? Okay. So, what will be the meaning of that point? Like, if I draw the point here, yes, that profit is okay. decreasing. Just go by perpendicular. So from this point, if I draw the perpendicular on x-axis, at that time my output will be there. For example, यहाँ पे पहले मैंने L point पे perpendicular डाला तो 100 units मिल गए. M point पे perpendicular डाला 150 मिल गए. For example, E point पे perpendicular डाला 200 मिल गए. अभी यहाँ पे जो आप नया point बोल रहे हैं उस पे perpendicular डाला, वहां पे 200 मिल गए. Means what? You can expand your manufacturing activity at 200, लेकिन 200 यूनिट्स बना के आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है? ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस. कितना मिल गया है? एल पॉइंट पे जितना प्रॉफिट मुझे मिलने वाला था उससे भी मेरा प्रॉफिट कम आ गया ना. मीन्स व्हाट? योर सेल इज इंक्रीज्ड बट योर प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीज्ड. देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? समझ में आ रहा है. So if you wanted to increase the sale, you can increase your sale, but your profit margin is very less. So there is no need of such kind of manufacturing. समझ में आ रहा है? To certain extent your profit declines.
to certain extent your profit may declines. So you can't manufacture this, you can't go to that much of stage. तो आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन कितना रहेगा एट पॉइंट ऑफ एम, आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन कितना रहेगा एट पॉइंट ऑफ एम. आपने क्या करना चाहिए, इतना ही मैन्युफैक्चरिंग करना है इधर तक. समझ में आ रहा है? तो एट दैट टाइम योर प्रॉफिट प्रोपोर्शन इज हायर. यहाँ पे जो कुछ 500-200 रहेगा, तो ये आपका फॉर एग्जांपल 150 रहेगा. सो इफ यू प्रोड्यूस हियर वेयर योर प्रोडक्शन इज हायर but your profit is lower as compared to existing, as compared to previous point E. Getting this? So this shows your declining trend towards the negative region. Clear? Tell me fast. Yes, sir. That means M is the optimum level. Yes, Right. exactly. You are correct. M is the optimum level at which you can get highest profit, and to get the highest profit of optimum level, you have to produce accordingly. यहाँ पे कितना रहेगा? For example, 100 units मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए. यहाँ पे देखिए at this point मैं यहाँ पे 200 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट M इतना नहीं रहेगा. 200 यूनिट्स भी प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट यहाँ पे M पे जितना प्रॉफिट मिलता उतना प्रॉफिट मुझे एट दिस पॉइंट आई एम नॉट गुड गेटिंग. मींस माय एफर्ट्स आर यूजलेस. ओके, क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, thank you so much.